So this is our next video, and here in this video we are going to talk about the general portions of the immunity. In the last lecture I gave you about the idea that how our immune system works whenever it finds some non-self या फिर foreign cells inside our body, how our immune system works and how it fights with such foreign cells that we have discussed in the last lecture. Today we will have to go through the basic portion of the immunity. So here I am starting with what is immunity and what is antigen. Then we will move into the types of immunity. Okay. So here see what it has. Definition काफी बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक है immunity का definition. लेकिन इस definition में क्या बोला गया है? Here it has been said that every day we come across the exposure of several antigens. That means several bacteria, several virus enters our body through air, through not maintaining proper hygienic hands, or eating contaminated food or water. Is not it? Because sometimes we don't even know that how our food or water gets contaminated. Some housefly will come and sit on our food, making it contaminated. Some kind of things will fall in the drinking water, making it contaminated. So sometimes we don't know even if we drink contaminated food or water. So in some way or the other, these particular antigens are entering inside our body. Okay, and after entering inside our body, we know that how our body responds towards that particular antigen. Okay, so that response which is shown by our body, because आज अगर हमारे body में 100 bacteria 100 virus घुसता है, our body can fight with almost all of them. Only few of them will be there who will be causing some kind of diseases, or it will bring some kind of symptoms in our body. Remaining with every microorganism, we will fight with them in some way or the other. Is not it? So that ability to fight with most of the organism who enters our body and killing them or cleaning them from our body, that thing is called as immunity. Okay, so every day we are exposed to large number of infectious agents, bacteria, virus that will enter. Other agents also we have discussed about, protozoa, filari, worms. Only few of this exposure results in the disease, as body is able to defend itself from most of the foreign agents, antigen. This overall ability of the host, जिसके body के अंदर घुसता है, to fight the disease causing organisms provided by immune system is called immunity. Okay, I hope you understood the definition. Next is antigen. What is antigen? Antigen is the protein expressed by the virus or bacteria mostly, but antigen can also be the toxin which was released by the protozoa, Plasmodium vivax, that is recognized by the immune system as foreign. Either it is bacteria or virus, or it is any kind of release from the bacteria and virus. The body will be able to understand कि बैक्टीरिया जो है वो खुद का सेल नहीं है, वो एक फॉरेन सेल है, तो इसको मारो. और बैक्टीरिया अगर कोई प्रोटीन अगर अपने बॉडी से हमारे ब्लड में रिलीज करता है, तो वो प्रोटीन भी खुद का नहीं है, ये भी बॉडी समझ सकता है, तो उस प्रोटीन को भी डिस्ट्रॉय करो, which stimulates the immune system to provide antibodies. So presence of antigen, presence of a foreign substance, either it is the cell itself, that means you can consider bacteria, or any release of the cell, or any toxin which is released by the bacteria. Okay, presence of such proteins, non-self protein, presence of such cell, non-self cell, anything which is non-self or anything which is foreign will stimulate an immune response, and that immune response is going to make or produce what? Antibodies. We have studied how antibodies are formed due to the incoming of the first time of some kind of antigenic presence in my previous video. Okay, so these are the two definitions that you need to learn. Mostly it comes in the board examination regarding these definitions. Now we will move into the types of immunity. Immunity is of two types. One is innate, another is acquired. You are well acquainted with these two words, because when we started the human health and diseases, we discussed about the types of diseases. There also we discussed about innate or inborn diseases, acquired or the diseases which comes in our body after our birth. So this is inborn immunity, the immunity which will be in our body by our birth. Acquired, which we will gain after our birth due to the exposure of antigen. इसमें एक्सपोजर ऑफ एंटीजन का जरूरत नहीं है, बॉडी में पहले से ही ये है, कोई भी एंटीजन आए ये फाइट करेगा उसके साथ, तो ये है इननेट, इनबॉर्न. इसको एंटीजन का एक्सपोजर नहीं मिलने से भी ये जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब
इस इम्यूनिटी को बॉडी में बनने के लिए एंटीजन का एक्सपोजर होना या एंटीजन का बॉडी के अंदर आना इज नॉट नेसेसरी। अगर नहीं भी आता है तो भी ये हमारे बॉडी में है और ये प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन इस इम्यूनिटी को बॉडी में बनने के लिए एक एंटीजन का बॉडी में आना इज इंपॉर्टेंट। एक्सपोजर जब होगा तभी एंटीबॉडी बनेगा, ठीक है, या तभी वो इम्यूनिटी बनेगा जो उस फॉरेन पार्टिकल के साथ फाइट कर सकता है। तो अभी हम लोग ये दोनों में क्या क्या है, फैक्टर्स क्या क्या नहीं है, ये सब पढ़ेंगे। इसका नोट बना लो।
सो यहाँ पे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में डिस्कशन है। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या प्रेजेंट है, ऐसा ऐसा चीज प्रेजेंट है जो हमारे बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, या बॉडी के इंटरनली कुछ कुछ रिएक्शंस होता है, उसको हम लोग सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब क्या है, हमारे बॉडी का वो पोर्शंस, ठीक है ना, जो बैक्टीरिया के एंट्री को या कोई भी पैथोजन का एंट्री को डायरेक्टली रोकता है। जैसे कि बैक्टीरिया यहां से घुसना चाहता है, यहां से रोका जा रहा है। सो एपिडर्मिस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हम लोगों ने कंटामिनेटेड फूड खा लिया, उस फूड के साथ कोई बैक्टीरिया चला गया, वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के थ्रू घुसना चाहता है, मतलब वो पहले हमारे मतलब एलिमेंट्री कैनल के ल्यूमेन में चला गया और फिर ल्यूमेन से उसको हमारे बॉडी के अंदर अगर आना है तो तब भी हमारा जो ल्यूमेन है एलिमेंट्री कैनल का, उसमें भी एक डिफेंस सिस्टम रेडी है। क्या है, हमारा एलिमेंट्री कैनल का ल्यूमेन में कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन है और वो म्यूकस मेम्ब्रेन कुछ म्यूकस रिलीज करता है। वो म्यूकस अलाउ नहीं करता है बैक्टीरिया को हमारे एलिमेंट्री कैनल के थ्रू घुसने के लिए, ठीक है ना। सो दैट वाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जनरली ये सब है जो हमारे बॉडी के ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल इंटरफेरोन्स आर सम काइंड ऑफ प्रोटीन जो कुछ मैकेनिज्म करता है, क्या करता है मैं एक्सप्लेन करूंगा। फेगोसाइट तो पता है, मैक्रोफेज, मोनोसाइट वो तो ब्लड में ही रहता है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज्ड बाय मस्ट सेल, तो मस्ट सेल बाय रिलीजिंग हिस्टामाइन, तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी कहा हुआ ब्लड सेल्स के अंदर हुआ, वेसोडाइलेशन, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन लास्ट क्लास में पढ़ा है। फीवर मैंने थोड़ा बहुत समझाने का कोशिश एक बार डाउट क्लास में किया था कि फीवर हमारे बॉडी का एक सेल्फ मेड रेस्पॉन्स है। हमारा हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को बढ़ा देता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ इन आवर बॉडी, इन द इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। फिर भी फीवर को थोड़ा और बेटर मैं एक डेफिनेशन लिखा के तुम लोग को समझाऊंगा बाद में। एनके सेल नेचुरल किलर सेल, जो क्या होता है एफसी रीजन में बाइंड करता है, लास्ट क्लास का डिस्कशन, और बाइंड करके क्या रिलीज करता है, परफोरिन ग्रेन्जाइम पढ़ा है हम लोगों ने। कंप्लीमेंट सिस्टम तो शायद नहीं पढ़ाऊंगा अभी, कंप्लीमेंट सिस्टम पूरा थोड़ा सा एंट्रेंस लेवल के लिए हाईटेक डिस्कशन है, जो मेडिकल कॉलेजेस में भी जब तुम लोग जाओगे तो जो तुम लोग का फर्स्ट ईयर होगा, फर्स्ट सेमिस्टर होगा, वो पहला सेमिस्टर में ये कंप्लीमेंट सिस्टम मिलता है। तो ये थोड़ा सा ऊपर का लेवल का डिस्कशन है, ये कभी बाद में करेंगे, अभी तो टाइम बिल्कुल नहीं है। 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स, उसमें से देखो 2 लाइन ऑफ डिफेंस डिस्कस हो गया, अभी 4 टाइप्स ऑफ बैरियर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लाइन ऑफ डिफेंस और बैरियर ना अलग अलग चीज नहीं है, ये लोग सेम चीज ही है, लेकिन देखने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बॉडी कैसे अपने आप को बैक्टीरियल एंट्री से रोक रहा है, या बॉडी कैसे अपने आप को बैक्टीरियल एंट्री होने के बाद भी बचा रहा है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बैक्टीरिया को एंट्री करने से रोका जा रहा है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, अगर बैक्टीरिया बाय चांस एंट्री कर गया तब उसको बॉडी के अंदर कैसे मारा जाएगा, दैट इज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। 4 टाइप्स ऑफ बैरियर, यहाँ पे भी हम लोग यही बात करेंगे कि बैक्टीरिया को हमारे बॉडी में घुसने से कैसे रोका जाएगा, और ये सब हमारे बॉडी में इनबॉर्न कैसे प्रेजेंट है, क्या क्या है, ठीक है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे। जो इनबॉर्न हमारे बॉडी में है लेकिन फिर भी वो एक बैरियर के जैसा है, वो बैक्टीरिया को रोक रहा है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोक रहा है। पहला है फिजिकल बैरियर। इसमें देखो क्या बोला गया, स्किन इज द मेन बैरियर व्हिच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो अभी हम लोगों ने लाइन ऑफ डिफेंस में भी डिस्कस किया, स्किन के थ्रू नहीं घुस सकता है। म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, जीआई ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट हेल्प्स इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स। समझ में आया कि ये सब अगर हमारे बॉडी मतलब हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू कोई बैक्टीरिया घुस जाए, वहां से उसको बॉडी के अंदर आना है तो भी नहीं आ पाएगा। यूरिनरी ट्रैक्ट का जो ल्यूमेन है दैट इज लाइंड बाय ए म्यूकस मेम्ब्रेन, जो ट्रैप कर लेगा उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और अंदर घुसने नहीं देगा। कोई हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू बॉडी के अंदर घुसना चाहता है तो वहां पे भी प्रॉब्लम होगा, म्यूकस कोटिंग वहां पे भी है। जीआई ट्रैक्ट माने गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट माने एलिमेंट्री कैनल, उसमें तो है ही, ठीक है ना। तो ये सब है क्या, फिजिकल बैरियर जो माइक्रोब्स के एंट्री को डायरेक्टली रोकेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आ जाएगा मैक्सिमम द सिक्रेशंस ऑफ आवर बॉडी व्हिच प्रिवेंट्स और व्हिच किल्स द माइक्रोऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल एसिड इन स्टोमक, हमको पता है HCl क्या करता है, मैक्सिमम बैक्टीरिया वायरस को मार देता है। सलाइवा इन माउथ, सलाइवा में क्या प्रेजेंट है, लाइसोजाइम, वो भी क्या करता है, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को रप्चर। टीयर्स फ्रॉम आइस, इस टीयर्स में भी क्या है, लाइसोजाइम, वो भी क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है ना। सलाइवा में थायोसाइनेट्स भी है, ठीक है।
तो ये सब चीज फिजियोलॉजिकल बैरियर है। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टू बैरियर, दैट इज सेलुलर एंड साइटोकाइन। ठीक है, इसका नोट बन लो। ये है द नेक्स्ट टू बैरियर्स। पहला जो है वो है सेलुलर बैरियर। उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं गया क्योंकि सेलुलर बैरियर के बारे में हम लोगों ने बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी में पढ़ा है। इट इंक्लूड्स WBC लाइक PMNL, दैट इज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है ना, ल्यूकोसाइट का दो हिस्सा है, एक ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जो है उसमें हम लोग को मिलेगा इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ये जो तीनों है, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इन तीनों का जो न्यूक्लियस है वो लोब न्यूक्लियस होता है। एंड इस तरीके का लोब न्यूक्लियस को हम लोग क्या बुलाते हैं? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। दैट मींस granulocytes can also be called as polymorphonuclear leukocyte because ग्रेन्युलोसाइट का जो न्यूक्लियस है वो लोब्ड होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने जिस WBC, जिस पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट के बारे में बात किया है वो है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और लास्ट वीडियो में जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उसके कॉल में कौन आता है निकल के? न्यूट्रोफिल आता है। कौन आता है? मोनोसाइट आता है, मैक्रोफेज। और कौन आता है? NK सेल। ठीक है ना, फिर मैंने तुम लोग को ये पढ़ाया है कि जब FC रीजन पे NK सेल बाइंड करेगा तो NK सेल क्या करेगा? पार्फोरिन्स बोल के एक प्रोटीन है वो रिलीज करेगा। वो पार्फोरिन जाके बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसमें क्या करेगा? पोर्स क्रिएट करेगा। उन पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म रश करेगा और वो साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा जो भी है वो रश करेगा। रश करके उसको अंदर से टारगेट प्रेशर बढ़ा के फोड़ देगा। जैसे ही फोड़ देगा बैक्टीरिया का सेवरल पीसेस होगा, मैक्रोफेज आके उन पीसेस को खा लेगा, बॉडी से सेल डेब्रिस को रिमूव कर देगा। या फिर कोई ऐसा सेल है जिसके अंदर वायरस रेप्लिकेट कर रहा है तो सेम NK सेल पार्फोरिन रिलीज करेगा, पार्फोरिन छेद करेगा। ठीक है, उस छेद के अंदर ग्रेन्जाइम्स डाल दिया जाएगा जो अंदर का न्यूक्लिक एसिड है उसको तोड़ देगा, साइटोप्लाज्म रश करेगा, फोड़ देगा, मैक्रोफेज आएगा, सेल डेब्रिस को खा लेगा, खत्म। ठीक है ना, तो ये मैकेनिज्म है। ये तुम लोग यहाँ साइड में अगर चाहो तो लिख के भी रख सकते हो कि कैसे ये NK सेल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल कैसे हम लोगों को सेलुलर बैरियर्स ये कैसे काम करता है। ठीक है ना, लिखने से भी होगा या बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, कि जब एंटीबॉडी आ जाएगा तो उस एंटीबॉडी का FC रीजन में NK सेल्स जनरली बाइंड एंड इट रिलीजेस पार्फोरिन। पार्फोरिन क्रिएट्स पोर इन द रेस्पेक्टिव सेल। थ्रू दैट पोर साइटोप्लाज्म विल रश, टारगेट प्रेशर विद इन दैट सेल विल इंक्रीज, द सेल विल बर्स्ट। आफ्टर द बर्स्टिंग ऑफ द सेल जो भी टुकड़ा टुकड़ा है उसको क्या करेगा? न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट ये एनगल्फ करेगा, करके अपने अंदर उसको हजम कर लेगा, खत्म। सो सेल डेब्रिस विल बी रिमूव। तो ऐसे करके तुम लोग अगर चाहो तो इसके नीचे लिख के रख सकते हो ये जो भी मैंने अभी बोला। नेक्स्ट है साइटोकाइन बैरियर। वेरी इंटरेस्टिंग। साइटोकाइन बैरियर में क्या समझना पड़ेगा, ये हम लोगों ने पहले भी समझा है। वायरस, ठीक है, ये है प्रोटीन कोट, अंदर में है जेनेटिक मटेरियल एंड एक एंजाइम रेस्ट्रिक्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। वायरस क्या करता है? अपने प्रोटीन कोड को बाहर छोड़ देता है, लेकिन जो हमारा बॉडी का एक नॉर्मल सेल होगा उस नॉर्मल सेल के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल घुसा देता है। ये जेनेटिक मटेरियल हमारे नॉर्मल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ आके जुड़ जाता है और जुड़ के पूरा कंट्रोल इस जेनेटिक मटेरियल का, ये वायरस का जो ये है जेनेटिक मटेरियल वो ले लेता है। लेके इस DNA को, हमारे नॉर्मल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको बोलता है कि मेरा रेप्लिकेशन करवाओ और मेरा सेवरल कॉपीज बनवाओ, एज वेल एज मेरा जो प्रोटीन कोड है उस प्रोटीन कोड का भी फॉर्मेशन करने में मदद करो। ऐसा करने के वजह से अंदर में बहुत सारा इस तरीके का वायरल DNA का सेवरल कॉपीज बनेगा और उस कॉपीज के ऊपर इस तरीके का प्रोटीन कोड भी ये बना के देगा। ठीक है, फिर इस सेल को रप्चर करेगा, करके ये सब वायरस निकलेगा, निकल के आसपास का एक और नॉर्मल सेल के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल डाल देगा, फिर से उसके अंदर सेम प्रोसेस होगा, फिर निकलेगा, फिर नेयरिंग सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। तो ऐसा है वायरस का इन्फेक्शन करने का तरीका। अब इसका भी बॉडी ने एक इनबॉर्न जुगाड़ लगा के रखा है। एंड वो इनबॉर्न जुगाड़ क्या है? वो इनबॉर्न जुगाड़ को हम लोग क्या बुलाते हैं? साइटोकाइन बैरियर। एंड इस साइटोकाइन बैरियर में हम लोग एक केमिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, एक प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे जो है कौन? इंटरफेरोन। ठीक है, अब इंटरफेरोन कैसे काम करता है ये समझ लो। ये वायरस हमारे बॉडी में आया, आके इससे जेनेटिक मटेरियल इस नॉर्मल सेल के अंदर डाला, तो हमारा जो नॉर्मल सेल्स है बॉडी का उनमें एक एबिलिटी है कि जब भी एक नॉर्मल सेल वायरस से इन्फेक्टेड होगा तब ये नॉर्मल सेल अपने बॉडी से एक केमिकल छोड़ता है जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है इंटरफेरॉन्स।
ये जो केमिकल है इंटरफेरॉन, ये जाके क्या करेगा, ये जो नाइबरिंग सेल है, ठीक है, या पास का नॉर्मल सेल या इस नॉर्मल सेल का नाइबरिंग सेल, उस नाइबरिंग सेल के डीएनए को इंस्ट्रक्ट कर देगा कि वायरस अभी मेरे अंदर है, कुछ ही टाइम में ये वायरस मेरे अंदर से बाहर निकल के तुम्हारे अंदर ही आने वाला है। तो तुम्हारे अंदर जब ये वायरस आएगा, ये वायरस के एंट्री को तो तुम रोक नहीं सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर से ये तुम्हारा जो नेक्स्ट सेल होगा, नेक्स्ट नॉर्मल सेल, नाइबरिंग सेल जो भी होगा, उसमें जाने से तुम रोक सकते हो। तो जब इस पहला नॉर्मल सेल पकड़ लो, ये है फर्स्ट नॉर्मल सेल, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट नॉर्मल सेल के अंदर जब वायरस आता है तो पहला नॉर्मल सेल इंटरफेरोन्स का रिलीज करता है। ये इंटरफेरोन्स जाके इसके आसपास का जितना भी सेल है उन सब सेल को सिग्नल दे देगा, बोलेगा कि मेरे अंदर से निकल के ये वायरस तुम्हारे अंदर ही आएगा, तुम अपने डीएनए का उस पार्ट को इनएक्टिव करके रख दो जिस पार्ट का मदद ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल लेता है टू फॉर्म प्रोटीन कोड। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डालेगा, फिर ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये अपना रेप्लिकेशन करेगा, फिर ये जेनेटिक मटेरियल इसी डीएनए को बोल के एक प्रोटीन कोड भी बनवाएगा। तो ये जो सेल का नॉर्मल डीएनए है, उस नॉर्मल डीएनए में एक ऐसा हिस्सा है जो वायरस का प्रोटीन कोड बना के देता है। तो ये इंटरफेरॉन जाके उन सेल्स का जेनेटिक मटेरियल को इन्फॉर्म कर देगा कि तुम्हारा इस पॉइंट में जो ये वाला जीन है, उस जीन को तुम इनएक्टिव करके रखो, क्योंकि मेरे अंदर से जब ये वायरस निकल के आएगा तो ये वायरस तुम्हारे बॉडी में एक जेनेटिक मटेरियल डालेगा, वो जेनेटिक मटेरियल अपना बहुत सारा रेप्लिकेशन करवाएगा, उसको भी तुम नहीं रोक सकते हो, लेकिन रेप्लिकेशन कराने के बाद उसको प्रोटीन कोड का फॉर्मेशन करना होता है तुमसे बाहर निकलने के लिए। तो मेरे से बाहर आके तुम्हारे अंदर जेनेटिक मटेरियल तो डाल देगा, वो जेनेटिक मटेरियल का तुम्हारे अंदर सेवरल कॉपीज तो बन जाएगा, लेकिन तुम प्रोटीन कोड बना के मत देना, क्योंकि तुम प्रोटीन कोड बना के नहीं दोगे तो ये जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है ये तुम्हारे अंदर ही रह जाएगा, तुमसे किसी और में नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए भी प्रोटीन कोड चाहिए, वो प्रोटीन कोड से ही वो दूसरा सेल के पास जाता है, फिर प्रोटीन कोड को छोड़ के जेनेटिक मटेरियल डाल देता है। तो इंटरफेरॉन आसपास का सेल का डीएनए को सिग्नल दे देता है कि तुम्हारे अंदर अभी वायरस का जेनेटिक मटेरियल आएगा, मेरे से निकल के वो वायरस आएगा, तुम्हारे अंदर जेनेटिक मटेरियल डालेगा, तो तुम्हारे अंदर रेप्लिकेशन भी करेगा, लेकिन तुम उसका जो फाइनल स्टेप है प्रोटीन कोड का फॉर्मेशन मत करना, तुम्हारा इस पर्टिकुलर जीन का मदद से वो प्रोटीन कोड का फॉर्मेशन करेगा, तुम इस जीन को इनएक्टिव करके रख दो, उसको प्रोटीन कोड फॉर्म करने मत दो, तो वो पर्टिकुलर वायरस का जेनेटिक मटेरियल तुम्हारे अंदर ही रह जाएगा, तुमसे और किसी और सेल में नहीं जा पाएगा। तो interferons cannot kill the virus, but it can prevent the growth of virus. It can restrict the growth of virus. So that is what interferon is. यहाँ पे वही लिखा है, it includes interferon, a type of protein secreted by the virus infected cell which protects the non-infected cell from further viral infection. Interferons will act by inhibiting the viral replication as they stimulate synthesis of an enzyme which inhibit the synthesis of proteins required for replication of the virus. तो ये interferon वायरस के रेप्लिकेशन को भी थोड़ा बहुत इंटरफियर करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेन बेसिक है, जो मेन मैकेनिज्म है, वो है इस वायरस का प्रोटीन कोड के फॉर्मेशन को ये नहीं होने देता है, एज वेल एज वायरस का रेप्लिकेशन को भी ये इंटरफेयर करता है, जिसके वजह से वायरस का खात्मा तो नहीं हो सकता, लेकिन वो वायरस एक सेल के अंदर रेस्ट्रिक्ट होकर जरूर रह जाएगा। ठीक है, सो दिस इज आवर डिस्कशन फ्रॉम द इननेट इम्यूनिटी। नाउ वी विल मूव टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का डिस्कशन। ठीक है, तो मैंने पहले भी बोला है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में अगर कुछ याद रखना है तो क्या याद रखना है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर पैथोजन। स्पेसिफिसिटी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा बिकॉज इसमें एंटीबॉडी का रोल है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इननेट इम्यूनिटी में हम लोगों को देखो एंटीबॉडी का एक बार भी मेंशन नहीं मिला है, तो दैट मीन्स एंटीबॉडी इज अ पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज दैट जो हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी में डिस्कस किया है, वो होल मैकेनिज्म जो हम लोगों ने डिस्कस किया है दैट इज ओनली द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, इट इज गेन्ड आफ्टर बर्थ एंड इट इज पैथोजन स्पेसिफिसिटी। ठीक है, फिर वही लिखा है जो हम लोगों ने मैकेनिज्म में डिस्कस किया था, व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट इनिशिएट्स अ रेस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, इट इज ऑफ लो इंटेंसिटी। तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स कैसे होता है हम लोगों ने देखा कि क्या होता है, मैक्रोफेज आता है, आके एनगल्फ करता है, अपने अंदर फेगोसाइटोसिस करता है, शो करता है, हेल्पर टी सेल उठाएगा, उठा के एनालाइज करेगा, बी लिम्फोसाइट को बोलेगा एंटीबॉडी बनाने के लिए, एंटीबॉडी बनेगा, दो फाइटिंग, मेमोरी स्टोर हो जाएगा,
फाइटिंग जो है वो चला जाएगा, जाके ऑप्सोनाइजेशन करेगा, एनके, केटी, न्यूट्रोफिल इन सब का भी साथ, कंप्लीमेंट प्रोटीन्स इन सब का साथ ले लेगा और लेके उस बैक्टीरिया को मारना शुरू करेगा। लेकिन इस एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को होने में थोड़ा टाइम चाहिए, और वो जो टाइम है उस टाइम में बैक्टीरिया हमारे बॉडी में कुछ इन्फेक्शन करेगा, कुछ सिम्टम्स लाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इज ऑफ लो इंटेंसिटी। लो इंटेंसिटी का मतलब यही है कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जब तक बॉडी शो करता है तब तक हम लोग थोड़ा सा इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको लो इंटेंसिटी बोला गया है, ठीक है। हियर फाइटिंग एंटीबॉडीज एज वेल एज मेमोरी एंटीबॉडीज आर फॉर्म व्हिच फाइट्स, ये फाइट करेगा एंड गेट स्टोर, ये जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी क्या था, मैंने बोला था अगर ये पैथोजन फिर से कुछ दिन बाद वापस आया तो हम लोग को वेट करने का जरूरत नहीं है, हमारा मेमोरी सेल्स जो है वो तुरंत इसको रिकॉग्नाइज करेगा, अपने आप को फाइटिंग में कन्वर्ट करेगा और तुरंत भेज देगा। तो हमारा एनके, केटी, कंप्लीमेंट प्रोटीन, न्यूट्रोफिल ये सब एक ही साथ काम कर सकता है, इनको वेट करने का जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब ये पैथोजन आएगा तो इसको हमारे बॉडी में ग्रो करने का, हमारे बॉडी में कुछ डिस्ट्रॉय करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, उसके पहले ही हमारा बॉडी उसको खत्म कर देगा, ठीक है। तो इफ द सेम पैथोजन एंटर्स आवर बॉडी अगेन, memory cells will immediately start dividing to produce effector or fighting cells. This is called secondary immune response. It is of highly intensified, मान हाई इंटेंसिटी का है, बहुत जल्दी एक्शन करता है, बहुत जल्दी पैथोजन को बॉडी से इराडिकेट कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। पहले वाले में थोड़ा टाइम लगता है एंटीबॉडी को बनने में, सेकंड वाले में बना हुआ रहता है तो वो तुरंत आ जाता है, सब लोग एक साथ मिलकर मार देता है, तुरंत खलास, ठीक है। So this is your acquired immunity, and acquired immunity के अंदर में we need to discuss two parts of acquired immunity. उस two part में एक part को हम लोग बुलाते हैं cell mediated immunity, और एक को हम लोग बुलाते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो आज का क्लास में मैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डिस्कस करूंगा। अभी ह्यूमोरल इम्यूनिटी दिस यू विल गेट इन द पार्ट 2। टुडे दिस इज पार्ट 1 ऑफ द जनरल पार्ट ऑफ द इम्यूनिटी सेक्शन। सो टुडे मैं अभी ये डिस्कस करके आज का लेक्चर खत्म करूंगा। ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जारी रखेंगे, ठीक है। तो इसका नोट बना लो। तो यहाँ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंड यू कैन सी इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या लिखा है, इट इज टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। माने जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होगा उसमें क्या होगा, बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है ना। तो इट्स क्लियर कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज रिलेटेड टू टी लिम्फोसाइट, ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज रिलेटेड टू बी लिम्फोसाइट, ठीक है। टी सेल्स डू नॉट प्रोड्यूस एज एंटीबॉडीज बट हेल्प्स बी सेल्स टू प्रोड्यूस देम। हम लोगों ने देखा है बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी में, अगर हेल्पर टी सेल उस एंटीजन का टुकड़ा को उठाता नहीं, अगर वो हेल्पर टी सेल उस टुकड़ा को एनालाइज करता नहीं, तो कैसे वो बी लिम्फोसाइट को बताता है कि कैसा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है, कैसा पैराटोप प्रोड्यूस करना है जो एपिटोप का स्पेसिफिक हो, ये कैसे बताता। तो बीच में हेल्पर टी सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू कैन से ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंटीबॉडी बना रहा है, बी सेल एंटीबॉडी बना रहा है, लेकिन उसको बनाने में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का कितना बड़ा हाथ है। हेल्पर टी सेल वो सिग्नल दे रहा है, वो डायरेक्शन दे रहा है कि कैसा पैराटोप का डिजाइन होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी स्पेसिफिक विद द एपिटोप। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है ना, दैट इज टी सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ये मुझे जनरली पढ़ाने का जरूरत नहीं था क्योंकि ये तो तुम लोगों को सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ना चाहिए था फर्स्ट ईयर में, फिर भी बिकॉज ये इम्यूनिटी का पोर्शन में है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। हेल्पर टी सेल क्या किया, जो मैकेनिज्म में डिस्कस किया वही लिखा। दिस सेल स्टिमुलेट्स बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, प्लस ये स्टिमुलेट करता है किलर टी सेल को टू डिस्ट्रॉय पैथोजन। हेल्पर टी सेल जहाँ जाएगा अपने साथ किलर टी सेल को भी खींच खींच के लेके जाएगा। दैट इज द रीजन कि जहाँ जब इन्फ्लेमेशन होता है तो वहाँ पे हेल्पर टी सेल क्यों पहुँचता है, एक तो एनालाइज करने के लिए, दूसरा किलर टी सेल को वहाँ पे ज्यादा लाने के लिए। नेक्स्ट है साइटोटॉक्सिक किलर टी सेल। ये सेल कैसे काम करता है हम लोगों ने देखा है, एंटीबॉडी का एफसी रीजन में ये सेल बाइंड करता है और बाइंड करके ये क्या रिलीज करता है, पारफोरिन which creates pores on the invader cell wall। जो पैथोजन है उसका सेल वॉल में पोर क्रिएट करेगा for water to enter into it, thereby swells up and finally lies। swells up and finally lies, lies माने फट जाना, burst होना, ठीक है, फाइनली फट जाता है, ठीक है। फटने के बाद जो
सेल डेब्रिस रहेगा उसको न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, मैक्रोफेज है दोनों, ये दोनों उसको एनगाल्फ करेगा, करके अपने अंदर हजम कर लेगा, ठीक है। दिस सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस सेल का डिस्कशन आगे जाके दो जगह पे होने वाला है। एक, जब हम लोग इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ऑर्गेन इम्प्लांटेशन के बाद लोगों को इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स लेना होता है, वो क्यों लेते हैं क्या नहीं, वहाँ पे डिस्कस होगा। फिर एक है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बॉडी का खुद का इम्यूनिटी का कुछ प्रॉब्लम, वहाँ पे भी इसका डिस्कशन आएगा, तो इसको अच्छे से समझना है। सप्रेसर टी सेल क्या करता है? दिस सेल सप्रेसेस द फंक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिक किलर टी सेल एंड हेल्पर टी सेल सो दैट इम्यून सिस्टम डज नॉट अटैक्स द बॉडीज ओन सेल। तो सप्रेसर टी सेल क्या करता है? ये जो दोनों है, इन दोनों को चुप करके रखता है, सो दैट ये दोनों हमारे बॉडी का जो ओन सेल्स है, जो खुद का सेल्स है, उनको अटैक ना कर ले, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है, ये दोनों सिर्फ पैथोजेन या नॉन सेल्फ सेल को ही अटैक करता है। एंड इनमें ये एबिलिटी कैसे आता है कि ये लोग सिर्फ नॉन सेल्फ सेल को ही अटैक करे, ये एबिलिटी ये प्रोवाइड करता है। ये सेल इन दोनों को बोलता है, इन दोनों को डिस्टिंक्शन करने का एबिलिटी देता है बिटवीन सेल्फ सेल एंड नॉन सेल्फ सेल, ड्यू टू विच ये दोनों सिर्फ नॉन सेल्फ के अगेंस्ट में काम करता है, सेल्फ सेल के अगेंस्ट में काम नहीं करता है। दिस इज व्हाट सप्रेसर टी सेल का फंक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी डालूंगा, उसमें हम लोग को एंटीबॉडी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, ये सब हम लोग को मिलेगा। फिर वैक्सीनेशन वगैरह, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये सब थोड़ा सा है। फिर ये जो मैंने बोला है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये सब है। तो देखते हैं कितना होता है नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए यहाँ पे मैं रुकता हूँ, यहाँ तक का अच्छे से नोट बना लो और अप टू डेटेड रहने का बिल्कुल ही कोशिश होना चाहिए। बाय बाय।